سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بھائی یہ ڈرون، ذرا ڈرون کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو رکھ لیں آپ، اس کھلونے کو آپ لینڈنگ کرا دیں، بڑی مہربانی آپ کی، زور سے بولیں۔ روز لوگ الٹی باتیں کرتے ہیں، آج میں مرتے مرتے بچ گیا، مرتے مرتے بچ گیا۔ میرے بھائیوں یہ الٹی بات ہے، آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا، ہاں بچتے بچتے سب مر جائیں گے، کسی کو موت چھوڑے گی نہیں، مرتے مرتے تو کوئی نہیں بچا۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آپ میں میرا بھائی کوئی ایسا بیٹھا ہوگا، اللہ سب کو لمبی عمر دے، جو آخری تقریر سننے آیا ہوگا، اس کے بعد وہ پھر کبھی اس کو موقع نہ ملے، چونکہ موت آج کل تو بڑی اچانک آئی جا رہی ہے، ایک دم آ جاتی ہے۔ اور بھی یہی تو کہا تھا اپنے بیٹے سے سلیمان حکیم نے، اے میرے بیٹے میرے لال توبہ روز کرتے رہنا، چونکہ موت جب آتی ہے تو حال بدلنے کا موقع نہیں دیتی، تو موت جب آتی ہے تو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ میرے نبی پاک فرماتے ایک رات گزرتی ہے تو بندے کے دل میں کچھ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے دل میں کچھ میل لگ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ قبرستان جائے، اس کو چاہیے کہ کسی کے جنازے میں شرکت کر لے۔ مگر میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے اب جنازوں کو بھی معاذ اللہ اس وجہ سے جانا شروع کر دیا، وہ میرے یہاں آیا تھا تو میں اس کے یہاں جا رہا ہوں۔ اب یہ خالص دینی نیت نہیں ہے، یہ تو صرف بدلہ دینے جا رہے ہیں، یہ ثواب کی نیت سے آپ نہیں جا رہے ہیں۔ میری بات آپ غور کریں اور میری طرف توجہ دیں۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ موت جب آتی ہے تو خبر کسی کو ہوتی نہیں، انسان مر جاتا ہے، کوئی فلاں صاحب مر گئے، اچانک مر گئے، اچانک نہیں مرا تھا، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جیسے ہی تو پیدا ہوا ہے، پیدا ہو جانا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کو ایسا مرض لگا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، میں کہتا ہوں کینسر کا بھی علاج ہے، ایک ایسا مرض ہے، شوگر کا بھی علاج دنیا میں ہے، کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے، مگر ایک مرض ایسا ہے جس کا علاج نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر پائے گا، وہ مرض زندگی ہے، اور زندگی کا انجام موت ہے۔ اگر تم پیدا ہو گئے ہو تو اس کا انجام موت ہے، کوئی آپ کو اس موت سے بچا نہیں سکتا ہے، نہ کوئی بچا پایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر پھر بھی امام غزالی نے اس روایت کو لکھا کہ نبی پاک نے ہماری سرکار دو عالم نے ہمارے سبق کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے آپ کو ایک جگہ وضو کرنا تھا، آپ نے فراغت حاصل کی تھی تو 12-13 قدم دور پانی تھا، نبی پاک نے اس پانی پہ جانے سے پہلے سرکار دو عالم نے اس 12-13 قدم پانی سے جلے حضور نے تیمم فرمایا۔ تیمم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جب پانی موجود نہ ہو، حالانکہ پانی موجود تھا، حضرت عباس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے آقا ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے سرکار یہ راز سمجھ نہیں آیا کہ پانی جب موجود ہے تو آپ نے تیمم کیوں فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے چچا اس پانی تک پہنچنے کی مجھے امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کے حضور بے وضو نہیں حاضر ہونا چاہتا، اگر یہاں سے اس پانی تک میں وصال کر جاؤں تو میں نہیں چاہتا کہ میں رب کے حضور بے وضو حاضر ہو جاؤں۔ بس اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ نوجوان لڑکا ہے، بائک تیز چلا رہا ہے، فلم دیکھ کے آ رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، مگر اس کو موت نے بائک روکنے کا موقع نہیں دیا۔ اتنا موقع مل جاتا کہ وہ اپنی بائک روک لیتا اور پھر اپنے کانوں سے وہ لیڈ نکال دیتا جس کے ذریعے وہ گانا سن رہا تھا، اتنا بھی موقع نہیں دیا، موت نے اس کو وہی کے مرا ہے، وہ گانا سنتے سنتے اٹھایا جائے گا، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ نوجوانوں، اب جو رات کو فلم دیکھنے کا شوقین ہے، خدا نہ کرے کہ رات کو گندی تصویر دیکھ کے سویا تھا اور رات میں اٹیک آیا اور گندی آنکھوں کے ساتھ مر گیا تو قبر میں جا کے نبی کو کون سی آنکھیں دکھائے گا؟ اللہ اللہ۔ حافظ قرآن بچہ ہے،
15 साल का इंतकाल, उसने हिफ्ज किया है, अगले हफ्ते उसकी दस्तार है। अपने घर में नहाया है, जुमे की नमाज की छुट्टी में आया है, जुमे की नमाज पढ़ने गया, रास्ते में गिर गया, अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है। मां गई, कहने लगी मेरे लाल, मेरे और बच्चे मेरे हाथ का खाना खाते थे, मगर मेरे लाडले, मेरे बेटे, तूने मदरसे की दाल चावल खाए। मेरे बच्चे, तूने 8-9 साल की उम्र में खुद ही कपड़े धोए, मैं अपने और बच्चों के कपड़े धो देती थी। ये सारी कुर्बानियां मेरे बेटे इस वजह से थी कि जब मैं मर जाऊं और जब मैं कब्र में जाऊं, मेरे बेटे, तो मैं ये सोच रही थी कि जब मेरा इंतकाल हो और फिर मेरा बेटा जब मेरी कब्र पे जाके फातिया पढ़ेगा तो अल्लाह मुझ गुनहगार औरत को बख्श देगा। मगर मेरे बेटे, तूने ये कैसा मुझे दर्द दिया। 15 साल के बच्चे की लाश के पास खड़े होके बाप कह रहा है मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे दिल के चैन, मैं गुनहगार हूं, मगर मुझे उम्मीद थी कि जब मेरा हाफिज कुरान बच्चा जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो अल्लाह मेरे गुनाहों को जरूर माफ करेगा। मगर ये तूने मुझे कैसा दर्द दे दिया। मैं तेरा जनाजा उठाऊंगा तो फिर कभी उठ ना पाऊंगा। जवानों की मैयतें उठ रही हैं और मियां बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि मौत उम्र के एतबार से नहीं आती है मेरे दोस्तों, और मौत हाल भी बदलने नहीं देती। अब जरा गौर करो, जब फरिश्ता आता है, जब इंसान फरिश्ते को देखता है मौत के, तो कहता है मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए ताकि मैं अपने रब को राजी कर लूं। वो कहता है नहीं नहीं, तूने सारे अय्याम जाया कर दिए। वो कहता है मुझे कुछ घंटों की कुछ मोहलत दे दे। सारी सातें तूने बर्बाद कर दी, तुझ पे कोई वक्त नहीं बचा। फिर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो आंखें खुली खुली में हसरत के साथ दुनिया से चला जाता है। मेरे शेख, मेरे गौसे आजम, मेरे बड़े पीर, मेरे दस्तगीर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं कि ऐ इंसान, याद रख, तुझे जब मौत आएगी तो हाल बदलने नहीं देगी। अब जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अब अगर तू बेनमाजी है तो बेनमाजी मरेगा, अगर तू माँ बाप का गुस्ताख है तो जहन्नमी मरेगा, अगर तू माँ के सामने तेज आवाज से बोलता है तो तू जहन्नमी मरेगा। चाहे तू अपने पीर को अपने साथ कब्र में डाल लेना, मगर तुझे जहन्नम से कोई बचा नहीं सकता। अगर तूने अपनी माँ को नाराज किया है, अपने बाप को नाराज किया है, मेरे भाई, अगर तू माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है तो इसी हाल में मरेगा। अगर तू फिल्में ड्रामे देख के मर रहा है, खुदा ना करे कि आंखें बुरी लेके मर जाए और फिर कोई मौका ना मिले। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी मौत को याद कर। जिस हाल में तुझे मरना है उसी हाल में आज से जीना शुरू कर दे। चूंकि तेरी ये तेरी जिंदगी, ये तेरी दुनिया तुझे कुछ नहीं देगी, बस ये तुझे दफन करके आ जाएंगे। ना कोई आज तक किसी के साथ मरा है, ना कोई किसी के साथ अपनी मर्जी से मरेगा। वो अपने साथ, ना तो बेटा कब्र पे वापस लौटता है, ना भाई कब्र पे वापस लौटता है। वो कब्र जिस पे रोते रोते लोग बुरा हाल करते हैं, फिर वो कब्रें पुरानी हो गई, उनको कोई देखने वाला नहीं मिला। ऐसी जिंदगी न जियो कि मौत के वक्त तुम्हें हेजिटेशन हो, मौत के वक्त तुम्हें कोई दूसरी बात हो, मौत के वक्त तुम्हें इबाम हो। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐसे न मरो कि तुम्हें अफसोस हो, बल्कि बिल्कुल ऐसे मरो कि मौत के फरिश्ते को तुम इस्तकबाल करो। कैसा इस्तकबाल? ऐसा इस्तकबाल कि बरेली के 92 साल के बुजुर्ग जिनका अभी कुछ दिनों पहले उर्स गुजरा है, उन्हें दुनिया से जाना है और वो रात मगरिब की नमाज के बाद बेहोश हो गए। 92 साल की उम्र है। फिर उनको जब होश आया 12 बजे रात के तकरीबन, तो उन्होंने अपने मुरीदों से, पहचान वालों से, रिश्तेदारों से कहा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी? हाय हाय, ये इसे कहते हैं बुजुर्गी। मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी कि जी हुजूर नहीं पढ़ी थी। तो फरमाया फिर मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, बिल्कुल नहीफ थे, कमजोर थे, बिल्कुल मौत के करीब थे। फिर वुजू करा के कहा मुझे खड़ा करो। खड़ा कराने तक तो खड़ा कर दिया, फिर न जाने कहां से वो ताकत आई कि उन्होंने फिर 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज आराम से अपने रब के सामने रो रो के रुकू अच्छे से करके और फिर अच्छे से कयाम करके, अच्छे से जलसा, अच्छे से सजदा, आपने बड़े इत्मीनान से खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ी। तकरीबन 40 मिनट अपने रब की बारगाह में आप जो है वो नमाज पढ़ते रहे। फिर फरमाया मुरीदों से लेट गए, मुझे लिटा
उठा लो, लेट गए। फिर फरमाया भाई अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ करो। उसके बाद फरमाया पढ़ो कलमा, मेरी मौत का वक्त करीब है। अब मियां वो खुद भी कलमा पढ़ रहे हैं और उनके मुरीद और लोग भी कलमा पढ़ रहे हैं। इतना कलमा ना भूल जाओ कि मौत के वक्त में दूसरे लोग कलमा पढ़ाएं। ऐसा कलमा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो जो भूले हुए लोग तुम्हारी मौत देख रहे हो, तुम उनको भी कलमा याद दिला के चले जाओ। उन्होंने कहा कलमा पढ़ो, और कलमा पढ़ाते पढ़ाते ये गए वो गए और दुनिया से रुखसत हो गए। मियां उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। उन्होंने दुनिया को यह बताया कि इतनी ऐसी जिंदगी न जियो कि मरते वक्त कलमा याद न रहे, बल्कि ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो लोगों को कलमा याद करा के जा रहे हो। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, मेरे भाई मेरे दोस्त, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। तूने जवानों की मैयतें देख के भी अगर तेरा दिल ना बदला तो फिर कैसे बदलेगा। ये फितन का दौर है, फितन का दौर है। मेरी बहनें बैठी हैं, देखो मेरी बात सुनो। मेरी ये मुहर्रम का महीना है, वैसे इमाम हुसैन का महीना है। किसका है बोलो? हमारा तो अकीदा यह है कि जब मदीना हुसैन का है तो हर महीना हुसैन का है। बेशक। मैं किसी से कभी दाद चाहता नहीं हूँ जी, बेशक, मगर अगर कोई दे दे तो उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं बोलने वाले की जबान सुनने वाले के कान तेज करते हैं। जी बेशक। अब अगर आप बोलेंगे तो और भी तकरीर सुन लेंगे। दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा है? जरा जोर से बोलें, जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो अल्लाह के नाम पे हाथ नहीं उठा रहे हैं वो अल्लाह के कितने अच्छे बंदे हैं कि दूसरी बार में जरूर उठा लेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सारों ने उठा लिया, कम से कम किसी बात पे तो राजी हुए आप। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले, मैंने बोल देना है सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। देखो मुस्कुराया करें। मैं आपको बता रहा हूं जो मुस्कुराता नहीं ना उससे घबराहट होने लगती है उसके पास बैठने में। हाँ, खड़ूस आदमी की पहचान है ये, मुस्कुराता नहीं है कभी। जिसका दिल गंदा हो मुस्कुराता कभी नहीं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, सुन रही हैं, पूरे कॉस्मेटिक पे पैसा खर्च हो रहा है। ये इतना लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च होता है सिर्फ मेकअप पे। मगर हॉवर्ड कहता है कोई मेकअप खूबसूरत नहीं बना सकता। वो मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिनमें फिल्टर लगे हुए हैं, है ना? देखो नहीं, ये मोबाइल, वो मोबाइल, इसमें मोटी नाक पतली हो जाए, काला गोरा हो जाए, और ये मोबाइल चल रहे हैं। आप धोखे में पड़े हुए हैं। इंसान अपने आप को आईने में नहीं देखता आजकल फेसबुक पे देखता है और लगा के मोबाइल मुंह के निशान मिटा के कहता है मैं कैसा लग रहा हूं, बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। मेरे भाई मेरे दोस्त, किसी मोबाइल से कोई खूबसूरत नहीं बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई फेस वॉश, कोई क्रीम बंदे को खूबसूरत नहीं बना सकती। काफिर से भी एक ही चीज है, इंसान के चेहरे में 126 मसल्स यानी रगें हैं। ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। जरा जोर से तो बोलो यार। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। आप मुस्कुरा के देखें, अगर जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। मुस्कुरा के देखें। जो लोग मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और जो लोग नहीं मुस्कुराते उनसे तो लोग मजबूरी में मिलते हैं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं, मुस्कुराना सीखिए। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा, उनसे किसी ने पूछा हुजूर बताइए 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? फरमाया बिल्कुल कर दूंगा। बताइए? फरमाया अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है।
اب یہاں تو معاملہ دوسرا ہی ہے، لوگ اللہ کے سامنے نہیں روتے، تو روتے رہو، سب جگہ رو گے، مسکراؤ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک شعر سنو، اس کے بعد میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں۔ قاری نہیں نا، اگر ایسا ہوتا تو غریبوں کے بچے پیدا ہوتے، کسی مزدور کے اگر کوئی پیدا ہونا پسند کرتا، پھر بچے تو بل گیٹس کے پیدا ہوتے، اڈانی امبانی کے پیدا ہوتے، کوئی غریب کے اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ مگر دیکھیں آپ، یہ قدرت ہے، اپنی مرضی سے اپنا باپ نہیں چنے گا، اپنی ماں نہیں چنے گا، اپنا باپ اپنی بہن نہیں چنے گا، کوئی اپنا انتخاب اپنی ماں اپنی مرضی سے اپنا باپ کا انتخاب نہیں کر سکتا، اپنی بہن کا انتخاب نہیں کر سکتا، نانا نانی کا انتخاب۔ اسی وجہ سے زمانے میں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، کسی کی ماں ٹھیک ہے اس کا باپ ٹھیک نہیں، کسی کا باپ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں، کسی کی بہن ٹھیک ہے تو بھائی پریشان کرتا ہے، اور اگر بھائی ٹھیک ہے تو بہن نے پریشان کرنا۔ جواب ہے، اللہ نے اسے بہن سیدہ زینب عطا کی جو اپنے زمانے اپنی ہم عصر عورتوں کی سردارہ ہے۔ اللہ نے پروردگار نے اس کو بھائی حسن عطا کیا جو سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے اس کو ماں سیدہ فاطمہ عطا کی جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ اللہ نے ان کو بابا علی عطا کیے جو سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو نانی خدیجۃ الکبریٰ عطا کی جو ساری امہات المومنین کی سردارہ ہے۔ اللہ نے اس کو نانا مصطفیٰ جان رحمت عطا کیے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ زور سے تو بولو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس کی ماں انسٹاگرام کی ریلیں دیکھتی ہو، بچہ جب روئے تو موبائل ہاتھ میں دینے والی عورتیں سنیں، کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے کہ یہ، اچھا کیمبرج ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ، بڑی دنیا کی یونیورسٹی، ہارورڈ، کیمبرج، یہ بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں کیمبرج کہ یہ جو عورتیں، ذرا دھیان سے سننا بھائی، دھیان سے سننا میری بات، بہت دھیان سے، سمجھ آ رہی سب کو؟ اور اپنے بچوں کو بچاؤ، ورنہ آنے والی نسل تمہیں بھول جائے گی کہ تمہارا مذہب کیا تھا۔ جی بے شک۔ ایک پیپسی اور ایک تھمس اپ کو پھاڑ کے اسے ریل بنا کے ڈال کے یہودیوں کا بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ یہ بتاؤ کیا پیپسی صرف ان کی ہے، انسٹاگرام ان کا نہیں ہے؟ بولو تو جلدی بولو۔ یہ جو فیس بک پہ بدتمیزی کر رہے ہیں، فیس بک ہی ہے، کسی کی بھی عزت اچھال دیتے ہیں لوگ آج کل۔ یہ فیس بک کس کا ہے؟ اب قرآن تو پڑھنے کا اس کو بھی وقت نہیں ہے جو بہترین قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کا دل بھی برباد ہے۔ آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ نارمل بات ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، قاری صاحب، جس کا دل جتنا صاف ہوگا وہ اتنا ہی قرآن کی تلاوت کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ ادھر دیکھو، تو کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے کہ ادھر دیکھو، توجہ کرو بھائی،
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चे को रोते वक्त मोबाइल देके खामोश हो जाती हैं, वो बच्चा, तो उनको बता दो वो मोबाइल नहीं दे रही हैं, अपने बच्चे को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, जहर। क्या दे रही बोलो? बच्चा मोबाइल के हवाले कर रहे हैं आप, फिर बच्चा आपका नहीं रहेगा। वो जो बच्चा 7 साल तक आपके आगे पीछे घूमता है, अगर आपने उसको ठीक से तालीम नहीं दी, फिर आप उसके आगे पीछे घूमोगे तब भी आपके पास नहीं आएगा। मेरी बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, बेटियों से खुदा करा खुदारा अपने बच्चों को बचाओ। ये बताओ, जिसकी मां और जिसका बाप नमाज नहीं पढ़ता हो, क्या उसके बच्चे कभी नमाज पढ़ेंगे? जल्दी तो बोलो यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या पढ़ेंगे कभी नमाज? जल्दी बोलो, पढ़ेंगे? तो फिर आप मुझे बताइए, फिर ये कैसा मामला है? क्या दीन बचा है? बस यही मुसलमान हो इतने ही कि बस ईद पे नमाज पढ़ ली, इधर सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कमेंट, उसके खिलाफ कमेंट, एक कमेंट से कुछ होता नहीं है, इसके कमेंट, उसके कमेंट, मेरे खिलाफ आ गए, इसके खिलाफ आ गए। एक कमेंट बता रहा हूं, खाली एक कमेंट करवा लेना, पूरी दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ कमेंट करेगी तो उन सारे कमेंट करने वालों से तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। एक कमेंट करवा लो अपनी जिंदगी में बस, और वो कमेंट अपनी मां से करवाओ कि मेरी मां तुझसे मुझसे राजी है कि नहीं। अगर वो दिल से कह देगी मेरे बेटे मैं तुझसे राजी हूं, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ होगी, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? देखो मैं फालतू बात तो नहीं कर रहा हूं, कोई ना आप सुनना ना मैं कर रहा हूं। अगर फालतू बात करूं तो टोक देना, दिल लगा के आप बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, जैसी मां होगी वैसे ही बेटा। तवज्जो भाई, तवज्जो है कि नहीं? मां कुरान पढ़ेगी तो बच्चा भी कुरान पढ़ेगा, और मां नहीं पढ़ेगी। अच्छा देखें आप, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं बच्चे पे मां का असर, तवज्जो करना भाई, तवज्जो करना, ये कब कह रहे हैं? हमारे गौसे आजम के जमाने के करीब हैं इमाम गजाली, उनको तकरीबन 800 साल हो गए, मगर क्या फरमा रहे हैं मालूम है? और लोग पढ़ते नहीं, इधर उधर के झगड़ों में लगे रहते हैं। फरमाते हैं मां के पेट के बच्चे पर पैदा होने के बाद असर नहीं होता, जब वो पेट के अंदर होता है तभी शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये कह रही है जो नई साइंस है, मेडिकल साइंस, ये कहती है कि औरतें जब डॉक्टरनी के पास जाते हैं या फिर चेकअप कराने, वो कहती हैं अगर चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकत, अच्छा ये बच्चे जो अपनी मां के पेट से पागल होते हैं, इस पे रिसर्च हुआ, ये कौन है? आप समझ रहे? जी जी, कौन बच्चे हैं ये? तो क्या ये वो बच्चे हैं जब ये मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनको मारा, इसको, इसकी मां को, और मारा बीबी को, असर किस पे हो गया? अब वो 80% बच्चे, इसको हॉवर्ड कहता है कि ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे, बाप ने ऐसा टेंशन दी या उसको मारा, किसी तरह से परेशान किया, बच्चे के पेट के बच्चे पे असर हो गया और वो डिस्टर्ब हो गया मेंटली। अब उसे कहीं भी दिखाओ, अपने किए का कोई इलाज, जल्दी बोलो, नहीं है। इसका मतलब ये है कि मां जब जाती है डॉक्टरनी के पास तो वो कहती है देखो तुम अगर चाहती हो बच्चा तुम्हारा ताकतवर हो, मजबूत पैदा हो, तो ज्यादा आयरन की चीजें यूज करना, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर होता है। ये जाहिल हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं, और वो उससे भी बड़ा जाहिल है जो अपनी बीवी को हालत हमल में मारे। वैसे तो जाहिल की पहचान ये है कि वो अपनी बीवी को मारेगा भी, गालियां भी देगा। जब कोई जाहिल अपनी बीवी को मारे, गालियां दे, तो उसकी बीवी उससे ना कहे, वरना वो और जिहालत करेगा। इतना दिल में सोच ले कि ये अकेला जाहिल नहीं है, इसके बाप ने भी इसकी मां को मारा होगा, जो ये अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये खानदानी बदतमीज है, इसका बाप भी बदतमीज था और ये भी बदतमीज है, इसका दादा भी वैसे ही रहा होगा। खुदा की कसम, तेरा दादा कैसा था तेरे बताने से पता नहीं चलेगा, तेरी आदतों से पता चलता है कि तेरा दादा कैसा था। तेरे बाप भी तेरी आदतों से पता चलेगा जो अपनी बीवी को मारते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल बेफिक्र रहना,
زیادہ آئرن طاقتور بچے کے لیے آپ اللہ کے فضل سے اس میں کوئی باپ بیٹھا ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو اللہ چاہے گا وہ باپ بنے گا. تو جو باپ بیٹھے ہیں وہ سن لیں اپنے بچے عورت کو کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ طاقتور چیزیں کھلانی ہے. جیسے آئرن کے لیے آپ کو بادام کھلانے حالت حمل میں, آپ نے پریگننٹ مومنٹ میں زیادہ تر آپ نے بادام کھلانے اپنے بچے کو اور زیادہ اپنی بیوی کو, اور زیادہ تر سیب کھانے. سیب میں آئرن ہوتا ہے. وٹامن سی کے لیے لیمو اور سنترا استعمال کرنا ہے, اور وٹامن ڈی کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے امرود کھانا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے سیب, سنترے, انار, امرود کو اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کوئی زبردستی میں تھوپ نہیں رہا ہوں, آپ مرضی ہے, آپ میری بہنوں کی مرضی ہے. بہت اچھا پیغام. بعد میں تعویذ کرنے والے کو اپنے گھر میں الٹا لٹکا دینا, اس کے تعویذ کو لٹکانے کی بات تو چھوڑ, تب بھی تیرا بیٹا تیرے قبضے میں نہیں آئے گا. بے شک. توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ماں قرآن پڑھے گی. اچھا دیکھو یہ پانی پت کو جانتے ہو؟ پانی پت کرنال بچہ پیدا ہوا, امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے نعمانی بچہ, امام اعظم کی اولاد میں سے, ان کی ذریت میں سے, ان کی جنریشن میں سے بچہ پیدا ہوا. پیدا ہوتی ہی رونے لگا. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, ایک نارمل ہو گیا. 1 حکیم, 2 حکیم, 3 حکیم, 4 حکیم, 5 حکیم, 10 حکیم, 50 حکیم, اور ٹھیک ہی نہیں ہوا. 1 مہینہ گزر گیا, بچہ لگاتار روئے جا رہا ہے, کنٹینیو. ایک دن حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا تو ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے مریدوں سے, یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہا کیسے؟ آؤ چلو دیکھتے ہیں. گھر پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے؟ باپ نکل کے آئے, یہ آپ کا بچہ ہے؟ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. جی. کہا آپ کو مبارک ہو, اللہ کا ولی ہے. کہا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہ تو یہ خود سویا ہے نہ مجھے سونے دیا ہے, پریشان ہوں, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا دیکھو اسے برا نہ کہو, میری گود میں لاؤ. گود میں لا دیا, ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے کان میں کچھ پڑھا, بچہ ہو گیا خاموش. کہا حضور کیا پڑھ کے بتا دیا؟ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا, کیا پڑھ کے سنایا؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی والدہ کیا یہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں ہے؟ تو کہا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا بچہ, آئے ہائے ہائے, تو ماں نے اتنا قرآن پڑھا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے, سونے سے پہلے جاگنے کے بعد, روٹی بناتے چکی چلاتے جھاڑو لگاتے, اتنا قرآن پڑھا کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو قرآن سننے کی عادت ہو گئی. اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی. اور جب بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں چلی گئی, قرآن اس نے پڑھا نہیں. یا ماں نے قرآن پڑھا نہیں تو بچے کو یاد آئی قرآن کی, تو تم نے اس کو دوائیاں کھلائیں. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. جب ماں پانی پت میں قرآن پڑھ کے بچے کو, جب میاں ماں پیٹ میں ہو تو قرآن پڑھے, تو بیٹا شرف الدین بو علی شاہ قلندر پورے ہندوستان میں اسلام کے پرچار کو عام کرتا ہے. اور جب ماں مدینے میں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے ماں اگر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان شہداء کربلا. شارٹ کٹ راستے چھوڑو, شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا, زور سے بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضور کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور سلام کر دیا. پہلا جہیز آپ دیتے ہی نہیں اپنی بیٹی کو, جو دینا چاہیے. واشنگ مشین کام کی نہیں, کچھ پرانی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ساس کو پسند نہ آئے, کچھ ساسیں تو ایسی ہیں بس مرتے ہی جہنم میں, بس دیر ہے مر جائے ویسے ایک دم جہنم میں, کیونکہ وہ مر رہی ہے قبر میں پیر ہے مگر اس کو جہیز کی فکر ہے. ارے تیرے کس کام کا ہے, تو کیوں اس کے زندگی میں آگ لگا رہی ہے؟ ہاں میں عورتوں کو, ایسی کوئی میری بہن سن رہی ہو, کوئی بوڑھی ہوگی, وہ بزرگ نہیں ہے, بوڑھی کوئی سن رہی ہو, کوئی بدتمیز عورت جس نے کسی یتیم اور غریب بچی کا دل دکھایا, مجھے قسم ہے خدا کی عزت کی, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں,
जिस घर में यतीम के आंसू गिरे वो घर आबाद नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। गरीब की बेटी को ताना दे देकर जिंदगी हराम करने वाली औरतें कहती तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, और वो फिर रोती है और कहती है मेरा बाप मजदूर है, जाती भी नहीं पिटती भी है, कहीं नहीं जाती। जुल्म करते हो और कहते हो ये आफतें क्यों आ रही हैं? मेरी तरफ देखो भाई, इधर देखो, देखो आपको मेरी तरफ देखना है। आपको पता है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं, इस पूरी महफिल में अगर कोई नौजवान ये वादा करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, और उससे जब कोई पूछे क्यों, मैं उसका हाथ चूम लूंगा, इस पूरी महफिल में उसका माथा चूम लूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बिना जहेज के, बगैर किसी तामझाम के, बिना एक कप चाय के करूंगा, जब कोई उससे पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे मेरे इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप क्या पीछे देख रहे हो, इधर देखो भाई। अच्छा वो सुभान अल्लाह, आज जो भी खड़ा हो रहा है सुभान अल्लाह, और भी कोई नौजवान हो तो खड़े होकर देखे कि शादी करेगा तो बगैर जहेज के। इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मत बैठ जाओ, नीचे हाथ करो। मुजाहिदे इस्लाम है ये, आज के जमाने के ये लोग हैं, अगर इनकी नीयत सच्ची है तो अल्लाह इन्हें कबूल जरूर करेगा। बेशक। और याद रखो, कार तो मिल जाती है मगर पेट्रोल नहीं पड़वाया जाता, याद रखना। हाँ याद रखना, बड़े बड़े देखे मैंने भिखारियों को, हाजी जी बन गया हाजी जी, तू काहे का हाजी है बदबख्त, काबे के कैसे चक्कर लगाए थे तू, आज भी पैसे के चक्कर में है, बेटे को बेच रहा है, जाहिल, दिमाग खराब है तेरा, इस बात को काहे का हाजी है, तू पाजी है, हाजी नहीं है। हाजी तो वो है बाद में, वही जब लड़के निकालती है ना हाई जी को, निकलो हाई जी बाहर, तो अब हाजी जी बड़े परेशान, उसको कहती हो तूने ही तो मेरे साथ किया था ये, तू बेटी बना के नहीं लाया था, तू तो तिजारत करके लाया था, मेरे बाप की तूने जमीन बिकवाई थी, तूने मेरे बाप को रुलाया था, तूने मेरे बाप को रुलाया है, मैं तुझे रुलाऊंगी, तुझसे बदला लूंगी। और हाजी जी अपनी दुनिया आखिरत संवारना चाहता है तो दुल्हन की तिजारत मत कर, बेटी बना के लेके आ, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल लग रहा, आप लोगों का नहीं लग रहा, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, अरे दिल लगा के बोलो, इधर देखो दिल लगा के बोलो, दिल लग रहा है नहीं। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, अरे मेरी तरफ देखो भाई, अरे मेरी तरफ देखो, हो सकता है फिर हम आपसे न मुलाकात करें, पहले कह रही है। दिल ऐसी कुछ बातें सुन लो, ऐसी कुछ कर लो कि अगर यही सुन के और करके चले जाएं तो अल्लाह हमें बख्श दे, बस जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं। मेरी तरफ देखो, हजरत अली कहां गए अपने, फरमाते मेरी बीबी ने दरवाजा खोला, ये जहेज नहीं देते। कौन सा जहेज जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया। जैसे ये मौला अली फरमाते मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया, ये पहला जहेज है। अपनी बेटी को दे दो, इंशाअल्लाह तलाक नहीं होंगी, इंशाअल्लाह तुम्हारे फैसले कचहरियों में नहीं होंगे, इंशाअल्लाह तुम थाने में नहीं जाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जतें बड़ी रहेंगी, लड़की वाले के भी और लड़की वाले की भी, कि जब शादी का वक्त आए तो बाप अपनी बेटी से कहे ऐ मेरी बेटी अपने शौहर का ख्याल रखना, यही जहेज मेरे नबी ने अपनी बेटी को दिया था। फरमाया था है मेरी बेटी फातिमा जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर। अब बीबी मुस्कुरा के सलाम तो करती नहीं, बल्कि उसकी मुस्कुराहट तो शादियों में पार्टियों में, अपना आदमी जब आया ना देखें आप, तो वही बगैर धुलावा मुंह, वही बेकार से कपड़े, और जब वो आया है तो और झगड़ा हुआ है, और जब पार्टी में गई है शादी में गई है तो मेकअप करके गई है। अब इन्हें बताओ कि तुम में दिलचस्पी कौन लेगा, जिसको मेकअप करके दिखाती हो वही तो लेगा ना, तो वो तो आदमी तुम्हारा दिलचस्पी लेगा नहीं, क्योंकि उसे तो तुम वही मुंह दिखाती हो। हालांकि मेकअप करना सवाब है, आला हजरत फरमाते हैं अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे और जब मेकअप घर में आए शौहर कि मेरा आदमी मुझे देखेगा, तो वो बुराइयों से बचेगा, दूसरी तरफ जहन नहीं जाएगा। फरमाते इस नियत से अगर वो करे
तो इतनी मर्तबा वो आईना देखेगी, अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाए। जोर से बोलो, उतनी। अब औरतें अपने आदमी के लिए तो दिखाती नहीं चेहरा, और दूसरे लोगों के लिए सच के बन के दिखाती है। यही झगड़े का हाल है, यही बुराई का हाल है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने आदमियों के लिए ये सजे तैयार हुआ करें। मौला अली फरमाते, मैं अपने घर गया, मैंने अपनी बीवी से पूछा क्या हाल है, कुछ परेशान लगती हैं आप भी अपनी बीवियों से पूछ लिया कीजिए, अपनी बीवियों से मोहब्बत कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, रवादारी कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, तभी तो मोहब्बत करेंगी। अब आप भी बड़े परेशान हैं, उधर औरतें भी परेशान हैं, दोनों की बड़ी बुरी हरकतें हैं कि ये इसके लिए वो नहीं करती जो उसको करना चाहिए था, और ये मर्द इसके साथ वो नहीं करता। अब मेरी तवज्जो करो और गौर करो। मौला अली ने पूछा, फातिमा क्या हुआ है? फरमाती, मेरे बच्चे बीमार हैं दोनों, और उनको शिफा नहीं हो रही है, दवाइयां भी खिला दी। तो हजरत अली ने कहा, आओ दुआ मांगते हैं। अल्लाहू अकबर, जरा गौर तो करो। अली ने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा। या अल्लाह इसके शुक्र में मैं 3 रोजे रखूंगा। अब सैयदा फातिमा ज़हरा आमीन कह रही हैं। दुआ किसके लिए हो रही है? हसन हुसैन के। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर दुआ करने वाला अली वलियों का सरदार हो और आमीन कहने वाली हुजूर की बेटी हो, जरा जोर से तो बोलो, तो दुआ क्या कबूल नहीं होगी? हुजूर की बेटी ने दुआ की, मौला अली ने दुआ की, बच्चे शिफा पा गए। हम तो नहीं जाते, हमें कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो कभी इस मियां के पास, कभी उस मियां के पास। औरतों को देखो, हमारी कितनी अहले सुन्नत में ऐसी जाहिल औरतें हैं, कभी इस मजार पे जाएंगी, कभी उस मजार पे जाएंगी, कभी इसका ताबीज बांधेंगी, कभी उसका ताबीज बांधेंगी। अब जरा गौर करो, मदीने में मैं अपने नबी पाक के घर से पूछता हूं, ऐ नबी पाक की बेटी, आपको जब कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई हाजत होती थी तो आप कहां तशरीफ ले जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती थी। तो कभी जन्नत से कपड़े आया करते थे, कभी जोड़े आया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई ये ड्रोन, जरा ड्रोन को लोग देख रहे हैं, इसको रख लें आप, इस खिलौने को आप लैंडिंग करा दें। बड़ी मेहरबानी आपकी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले हैं। क्या दुआ की? या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा, जल्दी बोलो यार। अली क्या सिखा रहे हैं कि जब ये अस्पताल जाने का मौका हो ना, तो थोड़ी दुआ भी कर लेना, है ना, कुछ सदका भी दे देना। रिपोर्ट कराने से पहले चाहते हो नॉर्मल आए तो किसी गरीब को कुछ पैसे दे के आना, किसी गरीब को कुछ 1-2 हजार दे के जाना। रिपोर्ट अगर तेरी 10 हजार की हो तो ये मेरी बात तजर्बा करके देखना कि जब किसी गरीब रिपोर्ट कराने जाओ तो जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो, उसको जरा मुस्कुराने पे मजबूर कर देना, कुछ पैसे देना। मेरा ईमान कहता है मेरे भाई, अल्लाह तुझे बड़ी शिफाएं देगा, तेरी रिपोर्ट खराब नहीं आएगी, क्योंकि जो गरीबों के दिल को खुश करता है अल्लाह उसको लंबी उम्र अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बतें फैलाओ, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम झगड़ा करने की तालीम नहीं देता। मौला अली ने दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे। अल्लाह का करम हुआ, दोनों बच्चे, और सुबह को सेहरी, रोजा शुरू। इधर देखो रोजा, एक हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे भी लोग पूछते हैं, अब मुझे उल्टी आ गई, अब रोजा। अरे भाई तूने इतना खाया ही क्यों था जो उल्टी आ गई? लोग इतना खाते हैं कि वो पूरे दिन उनको उल्टी डकारें आती हैं, पता ही नहीं लगता मैंने रोजा रखा है या आज मेरा पेट खराब हुआ है। इतना कुछ तो ऐसा लगता है कि आज के बाद खाने ही नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं क्या, और खाएंगे, अब आप 5 मिनट और जल्दी से। और यार ये कोई बात है? मेरे नबी पाक 3 खजूर खा के रोजा रखते थे। कितने? बोलो 3 खजूर। और मौला अली फरमाते हैं, पूछा आपसे अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे, अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे जो है ना वो बगैर सहरी का रोजा रखना पसंद है। मौला अली फरमाते हैं रोजा रखा, हुजूर की बेटी ने पानी दिया, पानी से सहरी की है। उनके घर में ब्रेड नहीं है, उनके घर में मक्खन नहीं है, उनके घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, उनके घर में जौ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। पानी से रोजा रख लिया। हजरत अली ने रोजा रखा। रोजा रखने के बाद हजरत अली चले मजदूरी करने। और यहाँ कोई मजदूर का बेटा बैठा हो या कोई मजदूर बैठा हो तो जरा मेरी बात कान खोल के सुनो। बिल्कुल भी जब यहाँ से निकलो आज के बाद ढवारसी से कोई मजदूर तो जरा कॉलर झाड़ के जाए और थोड़ा प्राउड फील करके जाए। कोई पूछे कहाँ जा रहा है? बड़ी घमंड और गुरूर के साथ चल रहा है, क्या बात है? तो कहते हैं इस वजह से जा रहा हूं। अरे तू तो मजदूर है, अरे तो क्यों ना जाऊं? मजदूरी करना मेरे नबी की भी सुन्नत है और अली की भी सुन्नत है। और ये मत बताने में हिचकिचाना मत,
हेजिटेशन का शिकार ना होना, कंफ्यूज ना होना कि अपने बाप का नाम बताऊं कि नहीं बताऊं। मेरा बाप मजदूर था, मेरा बाप चपरासी था, मेरा बाप मेहनत का इसके खुल के कहो भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था और मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह। ए भाई ए दिल लगा के बोलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई इधर देख, मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके आए और शाम को अपने घर में आए हैं सैयदा कायनात को, हुजूर की बेटी को। जरा तवज्जो तो करें, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम क्या कहता है, जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खबीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर नजर हटाओगे तो बात समझ नहीं पाओगे, लिहाजा मुझे ही देखते रहो और बड़ा आपका एहसान होगा। हालांकि आप जिस तरह से सुन रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ज्यादा उछल कूद नहीं रहे हो, मगर दिमाग में आपके बातें तो समझ में आ रही ना मेरी। बस मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अपने घर आया, पूरे दिन मजदूरी करके हुजूर की बेटी ने पहले पानी लेके आई आप कुएं से, उसके बाद आपने फिर चक्की चलाई। ये हुजूर की बेटी, नबी पाक की बेटी, और चक्की चलाने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी ने, सैयदा मखदूमा कायनात ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटियां बनाई। अब इंतजार हो रहा है कोई अजान की आवाज आ जाए तो आज नबी के घर में इफ्तार हो जाए, नबी के घराने में इफ्तार हो जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई, बल्कि एक आवाज आई, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप जो है ना वो इंतकाल कर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रोटी उठाई और एकदम उसी आदमी को दे दी। मौला अली इमाम हसन के हाथ में दे दी, बोले जाओ मेरे बेटे, जा अपनी माँ के बदले का दिया। ये नहीं फरमाया अपने अब्बा के भी बदले का दिया, नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया ले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। फिर हजरत इमाम हसन हुसैन बोले जब बाप माँ बाप ऐसा करें तो बेटे भी तो हसन हुसैन है ना, अब्बा लीजिए, हम ये सखावत सिखा रहे हैं, ये लीजिए हमारा खाना भी दे के आइए। अब चारों लोगों ने खाना दे दिया और फिर ये दूसरे दिन की सहरी फिर पानी से की गई। नबीजादों ने, नबी के घर वालों ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, शहजादी रसूल ने, नबीजादी ने, पैगंबर की बेटी ने खाना फिर दूसरे दिन, अल्लाह के रसूल की बेटी ने पानी जो पानी से आपने सहरी की और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहरी के लिए उठाया और आपने फिर उठाने के बाद पानी से फिर सहरी की। मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, फिर अपने बच्चों का ख्याल करके मजदूरी की, दूसरे दिन का रोजा रख के पानी से, और उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली शाम के वक्त में अपने घर फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना तैयार हुआ। फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाएगी तो मैं खाना खा लेंगे, अजान की आवाज आ जाए इफ्तार हो जाए, मगर अजान की आवाज मेरे भाइयों नहीं आई, बल्कि आवाज ये आई, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? जिसके खुद के बच्चे 2 दिन बगैर सहरी के रोजे से बैठे हों, उस माँ के दिल से पूछो, वो बताएंगी कि खातून जन्नत का दिल कितना बड़ा है। हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो, अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां, रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, जो सांस से निकली है उस सब ने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सबसे, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने
मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, सैयदा खाना लाएं। आवाज आई तो अंदर गई, मैंने कहा आवाज खाना लाएं, नहीं आवाज आई। फिर मैंने कहा फातिमा कमरे में खाना लाएं, कहते मैंने कई बार आवाज दी ना तो हुजूर की बेटी, अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी के अंदर से ये रुक जाएगी बारिश, अगर आप लोग यहाँ नहीं उठेंगे तभी रुकेगी, अगर उठोगे तो नहीं रुकेगी। अल्लाह अपने महबूब की इस महफिल को जरूर कबूल करेगा, वो बड़ा ही रोकने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। ए करीम अपने करम से रोक दे, ए रहीम अपने रहम से रोक दे, ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए करम करने वाले, तेरे महबूब के गुलाम यहाँ जमा हुए हैं, इनके दिलों में ये जिक्र हल्का ना हो जाए। मालिक इस जिक्र की बरकतों से रोक दे, हुजूर की बेटी के नाम नामी इसमें गिरामी से रोक दे। मौला रोक दे इस बारिश को थोड़ी देर के लिए, अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब के इन गुलामों पे करम कर। ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनके पास वक्त नहीं है, तेरी बात सुनने के लिए आज आए हैं। मालिक जमा हुए हैं, इनको अपने फजल से नवाज दे, अपना करम फरमा दे। ऐ करम करने वाले तुझे मदीने के जर्रात का वास्ता देता हूँ, ऐ करम करने वाले अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में गया तो मैंने कमरे में जाके देखा हुजूर की बेटी रो रही थी। मैंने पूछा ऐ सैयदा आप क्यों रोती हैं, ऐ खातून जन्नत? तो वो अर्ज करने लगी इस वजह से कि मेरे शौहर आए हैं और उन्होंने मुझसे खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पाई हूं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? फरमान लगी जब आप घर से गए थे घर में कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। ए अली मुझे शर्म आ रही है, मेरा शौहर बाहर से आए हैं और मैं उनको खाना नहीं दे पाई हूँ। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब ये कहा तो मौला अली ने कहा आप मुझे बता देती कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में कई दिन का फाका हो गया है, घर में कुछ पका नहीं है, घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा कि आप मुझे बता देती। फरमाया जब अल्लाह के रसूल ने मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं बैठ गया रोने।